Welcome students. Welcome to the e-learning session of economics. We started with consumer equilibrium chapter. That is the third chapter in your syllabus. So today we are going to continue from where we stopped in the previous session. Okay. So just for recollection, we have learned the meaning of utility first in this chapter. Utility क्या होती है? Then we studied total utility and marginal utility and the relationship between total and marginal utility. है ना? How to calculate total utility and marginal utility. We also learned the graph of the total utility curve and the marginal utility curve. Okay, these are the areas we covered. And then we also learned about law of diminishing marginal utility. So these are the portions we have covered. Law of diminishing marginal utility क्या बोलता है हमें? It says that as a consumer goes on consuming a same commodity, okay, again and again at the same time, okay, continuously, then utility derived from each successive unit goes on diminishing. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी कि जैसे जैसे एक ही कमोडिटी की कई सारी यूनिट कंटिन्यूएशन में एक ही कंज्यूमर अगर कंज्यूम करता चला जाता है तो हर सक्सेसिव यूनिट माने बाद वाली यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है वो कम होती जाती है. ओके, दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ the other part of the chapter that deals with consumer equilibrium. What is consumer equilibrium? ठीक है, आपने चैप्टर का नाम ही देखा होगा कि इसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके, बाय यूटिलिटी एनालिसिस. यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है ना, ये हमारा चैप्टर ही है. लेकिन अब जाके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. व्हाट इज इट, उसकी मीनिंग, एंड देन वी विल स्टडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी सिनेरियो एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटी सिनेरियो. तो ये दो चीजें हम लोगों को आज कवर करनी इस सेशन में. ठीक है, so let's begin with consumer equilibrium. What is consumer equilibrium? का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है? Okay, it refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction, ठीक है, with limited income and has no tendency to change the way of existing expenditure. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब वो ऐसी सिचुएशन में जब कंज्यूमर पहुंच जाए, है ना, ऐसी पोजीशन में पहुंच जाए जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विथ हिज गिवन अमाउंट ऑफ इनकम एंड इट इज अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर ही डज नॉट वांट टू चेंज ओके हिज एक्सपेंडिचर. जैसा एक्सपेंडिचर और जैसा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस पोजीशन से अगर वो चेंज ही ना करना चाहे तो उसी को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ओके, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट, a state of rest or a position of no change. मतलब ऐसी स्थिति जहां से चेंज होने का मन ही ना करे, है ना, ऐसी पोजीशन जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज हिज पोजीशन. ठीक है, सो इट इज अ चेंज, इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. रेस्ट मतलब जैसे वहां पे कंज्यूमर पहुंच गया है जहां पे उसको जो वो अचीव करना चाहता है वो मिल गया है ना विथ हिज इनकम. Now, consumer does not want to change his consumption. मतलब जिस level of consumption पे उसको maximum satisfaction मिल गया with the given amount of income, he does not want to change that level of consumption. ठीक है, अब उसको ना तो consumption को increase करने का मन है ना ही कुछ और करने का मन है. ओके, तो consumption का वो level और income का expenditure का वो level जिस level पे उसको maximum satisfaction मिला. As per law of diminishing marginal utility, utility derived from each successive unit goes on decreasing or goes on diminishing. ठीक है, ये तो हम लोग ने पढ़ ही लिया. Now, at the same time, his income also goes on decreasing with purchase of more and more units of a commodity. तो जैसे जैसे एक consumer एक के बाद एक unit of the same commodity consume करने लगता है, उसकी utility from each successive unit goes on decreasing. At the same time,
जैसे जैसे वो एक एक यूनिट खरीदता जाएगा, परचेज करता जाएगा, उसकी इनकम भी तो कम होती जाएगी ना, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, उसकी इनकम भी कम हो रही है, तो यूटिलिटी कम होती जा रही है और साथ में इनकम भी वेस्ट हो रही है, इनकम भी कम हो रही है ना। A rational consumer aims to balance his expenditure in a manner so as to get maximum satisfaction with minimum expenditure. Rational consumer क्या होता है? Rational मतलब जो अपने दिमाग से सही तरीके से सोच समझ के काम करता हो, है ना, that is rational. तो rational consumer वो है जो समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है सिचुएशन को, उसके बाद पैसा खर्च करता है ना। तो रैशनल कंज्यूमर एम्स टू बैलेंस हिज एक्सपेंडिचर, वो अपने एक्सपेंडिचर को मतलब अपनी इनकम को स्पेंड करने के पहले अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल को, है ना, और इनकम के लेवल को बैलेंस करता हुआ चलता है ना। ये नहीं कि बस पैसा है तो खर्च करना है, उसको उस लेवल पे एक्सपेंडिचर करना है जिस लेवल पे उसका इनकम और उसका यूटिलिटी दोनों बैलेंस्ड रहे। ओके, सो ही वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, उसका एम तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन है, बट एट द सेम टाइम ही वांट्स टू अचीव दैट सेटिस्फैक्शन विद द मिनिमम एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जिस लेवल पे एक्सपेंडिचर उसका you can say it is not so high, but his utility, his satisfaction is maximum, that is the point of equilibrium. तो equilibrium वो position है जहाँ पे satisfaction maximize हो रहा है लेकिन expenditure बहुत minimum है। okay, so that is what he wants to achieve with the given amount of income, है ना, क्योंकि पहले से ही हम लोगों को ये पता है कि इनकम जो है लिमिटेड है, इनकम अनलिमिटेड नहीं है। So with a limited amount of income, with a limited amount of money at his disposal, a person would not like to spend too much money to achieve a level of satisfaction. What he wants to do, he wants to spend some money and achieve maximum satisfaction from that expenditure. Okay, so he wants to balance his expenditure with his satisfaction. Okay, so consumer equilibrium वो position है, equilibrium means balance, it means a state of rest, ऐसी पोजीशन जहां पे मिनिमम एक्सपेंडिचर से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिल रहा है, और वो ऐसी पोजीशन है जिसको हर कंज्यूमर अचीव करना चाहता है, और वो एक बार अचीव कर लेता है तो वो चाहता नहीं कि उस पोजीशन में कोई चेंज हो, है ना। तो जब ऐसी पोजीशन एक कंज्यूमर रीच करता है तो उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्वल, है ना, बैलेंस्ड। अब उसमें कोई चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब चेंज तो हो सकता है लेकिन चेंज करने की इच्छा ही ना हो, वांट ही ना हो, है ना, दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हाउ ही अचीव्स। वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज इट, नाउ वी विल लर्न हाउ ही अचीव्स इट विथ सिंगल कमोडिटी। ओके, एंड देन वी विल लर्न हाउ ही अचीव्स इट विथ टू कमोडिटीज। ओके, तो फर्स्ट विथ सिंगल कमोडिटी, एक कमोडिटी का केस अगर है, एक कमोडिटी पे अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो किस तरह से वो अपनी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं अब। ओके स्टूडेंट, so let's move on to our second point, second topic for today, that is consumers equilibrium. Okay, and again this is divided into two parts. One is consumers equilibrium in case of single commodity and the other one is in case of two commodity. Okay, तो पहले हम लोग सिंगल कमोडिटी में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। Please all of you look at the board. The number of units of a commodity to be consumed by a consumer depends on two factors. है ना, हम लोगों ने बार बार एक चीज पढ़ी है कि बात एक सिंगल कमोडिटी की कई यूनिट्स की हो रही है ना। ये नहीं कि आप अलग अलग चीजों को खा रहे हैं, अलग अलग चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, अलग अलग कमोडिटी नहीं, एक ही कमोडिटी की बात हो रही है, उसी के सक्सेसिव यूनिट्स की बात हो रही है। सक्सेसिव मतलब लगातार एक के बाद एक उसी की अलग अलग यूनिट्स खाते जा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी कमोडिटी की सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, है ना, इट इज टू बी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। ठीक है, पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिस कमोडिटी की बात हो रही है उसका प्राइस कितना है, और दूसरा होता है उससे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से यहाँ पे जो मतलब है वो है मार्जिनल यूटिलिटी से, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात नहीं हो रही। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट जब आप कंज्यूम करने चलोगे
तो आप ये देखोगे कि उस यूनिट से, उस पर्टिकुलर यूनिट से आपको क्या मार्जिनल यूटिलिटी क्या यूटिलिटी होने वाली है। तो जो सक्सेसिव यूनिट से जो यूटिलिटी होती है उसी को तो मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, है ना। टोटल यूटिलिटी तो सारे यूनिट्स की यूटिलिटी को ऐड करके आती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लास्ट वाली यूनिट की यूटिलिटी, है ना। तो जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करते जाओगे एज अ कंज्यूमर, तो सपोज करिए आपने एक आइसक्रीम का एक ब्रांड आपने चूज किया और उसका एक फ्लेवर आपने चूज किया, उस फ्लेवर की आपने एक आइसक्रीम खाई, 1 यूनिट, ओके। अब जब आपने एक खाई तो उसकी जो यूटिलिटी है वही टोटल यूटिलिटी है और वही मार्जिनल यूटिलिटी है ना, क्योंकि एक ही सिंगल यूनिट की बात हुई। लेकिन जैसे ही आपने नेक्स्ट यूनिट एक और आइसक्रीम खाई वही ब्रांड और वही फ्लेवर की, तो वो हो गई सेकेंड यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी, ठीक है। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जो सेकेंड यूनिट से मिली है वो। तो आप जब स्पेंड करने जाओगे, आप जब फर्स्ट यूनिट पे स्पेंड किया, आपको मन था, आपने स्पेंड किया, आपको बहुत यूटिलिटी मिली उससे, ना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन अब जब नेक्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करने चलते हो तो आप कंपेयर करोगे, आप जब पहले कंज्यूम किया तब भी आपने ये किया था, और अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक ही कमोडिटी के एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करना चाहोगे, तो आपके लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा ये जानना कि ये जो बाद वाली यूनिट से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, कितना यूटिलिटी है आपके लिए उसका, और उसका प्राइस कितना। यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग द प्राइस विद द यूटिलिटी दैट यू विल बी डिराइविंग फ्रॉम दैट नेक्स्ट यूनिट, है ना, क्योंकि आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल गया है पहले, और अब आप ये सोच रहे हो एज अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल मतलब आपके पास एक सही दिमाग है, सोच है ना, आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो अपने दिमाग में। तो अब आप सोच समझ के पैसा खर्च करोगे नेक्स्ट यूनिट के लिए कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है उस यूनिट से, उसके प्राइस के साथ में क्या उसके कोई मैचिंग है ना। तो आप इतना पैसा अगर खर्च करने वाले हो तो क्या उस लेवल का सेटिस्फैक्शन उस यूनिट से आपको मिलने वाला है, ये आप हमेशा कंपेयर करते जाओगे, ठीक है। सो whenever a consumer consumes successive units of a commodity, same commodity, two factors are there which play important role in his mind. One is the price of the commodity, है ना, and second is the expected utility. कितनी utility, कितनी marginal utility आप expect कर रहे हो। marginal मतलब उस particular unit से आप क्या expect कर रहे हो utility, है ना। So what is the marginal utility expected from that सक्सेसिव यूनिट, बाद वाली यूनिट, ठीक है, जिसके लिए आप खर्च करने के बारे में सोच रहे हो। टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विद इट्स यूटिलिटी। एज आई टोल्ड यू, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है जहां पे वो जो प्राइस पे कर रहा है कमोडिटी के लिए वो पूरी तरह से उसको लगता है जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा है ना। तो वो जस्टिफाइड मतलब ये होता है कि आपको सही लग रहा है कि हाँ इतना पैसा मैं दे रहा हूं तो ये सही है ना, इस कमोडिटी की, इस यूनिट के लिए। पहली यूनिट से आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, है ना। अब दूसरी यूनिट जब आप कंज्यूम करने जाओगे तो आप और भी ज्यादा कंपेयर करोगे कि क्या इतना पैसा देना चाहिए, इससे क्या इतनी सेटिस्फैक्शन हमको मिलने वाला है ना, ये आप देखोगे। सो इक्विलिब्रियम इज द पोजिशन, इट इज अ पॉइंट, ओके, वेयर ही कंपेयर्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विद ए यूटिलिटी, जहां पे प्राइस को यूटिलिटी के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना प्राइस आप पे कर रहे हो और उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है ना। Being a rational consumer, he will be at equilibrium when the marginal utility is equal to the price paid for the commodity. मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि बैलेंस है। इक्विलिब्रियम मतलब एक स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बैलेंस्ड पोजीशन, है ना, जहां पे कंज्यूमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, नॉट जस्ट विद द यूटिलिटी बट ऑल्सो विद द प्राइस पेड, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी नहीं देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि यूटिलिटी के लिए वो कितना पैसा दे रहा है ना। अगर वो बहुत ज्यादा पैसा देके यूटिलिटी पा रहा है तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। वो सेटिस्फाइड कब होगा, जब एक मिनिमम पेमेंट में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो ही विल बी एट पीस, ही विल बी एट इक्विलिब्रियम, ओके, ही विल बी द हैप्पीएस्ट एट द पॉइंट वेयर ही थिंक्स दैट हिज price paid for the commodity and the marginal utility from that unit of the commodity is equal. जब वो ऐसा सोचता है, जब उसको ऐसा समझ में आता है कि वो जो नेक्स्ट यूनिट के लिए प्राइस जो पे करने वाला है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि कंपेयर्ड विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट यूनिट, उसको लगता है कि ये एकदम जस्टिफाइड है, एकदम सही प्राइस को पे कर रहा है ना।
तो वो अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन में मानता है। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी पोजीशन, ऐसी स्टेट जहां से वो चेंज ही नहीं चाहता, उसको लगता है ये सही जगह है, सही पॉइंट है ना। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट द मिनिमम पेमेंट, है ना। सो equilibrium is the price where a rational consumer it is a point where a rational consumer thinks that the marginal utility of the successive unit is equal to the price paid for that unit. Am I clear? Let's see how a consumer achieves this equilibrium with single commodity, है ना। तो marginal utility is expressed in terms of what? मैंने पहले ही दिन आपको बताया कि marginal यूटिलिटी को किस चीज में हम लोग ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो कार्डिनल अप्रोच है, तो कार्डिनल अप्रोच में ही हम लोग यूटिलिटी की बात करते हैं। और मैंने आपको पहले ही दिन बताया कि यूटिलिटी को यूटिल्स के टर्म्स में इकोनॉमिस्ट लोग, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक आर्टिफिशियल, एक यू कैन से साइकोलॉजिकल यूनिट बनाई थी, है ना, खुद ही बनाई थी, जिसका नाम था यूटिल्स, जो कि एक्चुअल में कोई ऐसी यूनिट नहीं है, लेकिन इसको इकोनॉमिस्ट लोग ने सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी के मेजरमेंट के लिए एक यूनिट बनाई है ना। उसका क्या नाम है? यूटिल्स, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स, यूटिल्स में वो मेजर की जा रही है। एंड द प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, प्राइस को आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, दोनों की यूनिट अलग है ना। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक रैशनल कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए मनी पेड और द प्राइस, है ना, फॉर द कमोडिटी, फॉर ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी को वो कंपेयर करेगा प्राइस पेड एंड द यूटिलिटी डिराइव, है ना। कितनी यूटिलिटी उसको मिलने वाली है हर यूनिट से, उसके पर्टिकुलर प्राइस से वो कंपेयर करेगा। अगर उसको लगता है कि प्राइस पेड फॉर दैट यूनिट इज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट यूनिट इज जस्टिफाइड, तो वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, है ना। अब इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए आपको पता है कि इक्विलिब्रियम तभी अचीव होता है जब दो चीजें कंपेयर हो रही हैं, और उनकी जो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब उनकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि यूटिल्स के टर्म्स में मेजर हो रही है, और दूसरी चीज जो कंपैरिजन में आ रही है वो है प्राइस, जो कि मनी के टर्म्स में मेजर हो रही। तो कैसे होगा काम? क्या बिना कंपैरिजन हो ही नहीं सकता अगर दोनों की यूनिट सेम ना हो, मेजरमेंट की यूनिट, है ना। बोथ कैन बी इफेक्टिवली कंपेयर्ड ओनली व्हेन बोथ आर स्टेटेड इन द सेम यूनिट, है ना। इफेक्टिवली कंपेयर्ड मतलब सही तरीके से कंपैरिजन अगर करना है, साइंटिफिक तरीके से कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों को एक्सप्रेस किया जाए, दोनों को मेजर किया जाए एक ही यूनिट पे। किन दोनों चीजों की बात हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी की और प्राइस की। यहाँ पे प्राइस तो मनी के टर्म्स में है और यूटिलिटी जो है यूटिल्स के टर्म्स में। दोनों को इक्वेट करने के लिए जरूरत है कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, दोनों को एक यूनिट पे मेजर किया जाए, है ना। नाउ प्राइस तो ऑलरेडी मनी के टर्म्स है, मनी से मेजरमेंट सबसे इजी है, तो चेंज किसकी यूनिट को किया जाएगा? ऑब्वियसली जो हाइपोथेटिकल यूनिट है, हाइपोथेटिकल मतलब खुद से सोच के बनाई हुई यूनिट, वो क्या है? यूटिल्स, है ना। तो जो चीज यूटिल में एक्सप्रेस है उसी को मनी के टर्म्स में लाना होगा। प्राइस तो ऑलरेडी मनी के टर्म्स में, और मनी के टर्म्स में सबसे इजी कंपैरिजन होता है ना। तो जब प्राइस ऑलरेडी मनी के टर्म में है तो प्राइस को चेंज नहीं किया जाएगा, है ना, उसकी यूनिट को नहीं चेंज किया जाएगा। चेंज किसकी यूनिट होगी? चेंज नहीं हो रही है एग्जैक्टली, यूटिल्स को ही प्राइस के टर्म्स में, मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। जैसा कि मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि एक पर्सन, एक कंज्यूमर है जो कि सपोज आइसक्रीम एंड चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, दोनों ही कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, और उसने ये मान के रखा है कि एक यूनिट ऑफ आइसक्रीम, है ना, एक यूनिट, 1 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू 1 रुपी, है ना। वो 1 रुपए से एक यूटिल को कंपेयर करके रखा हुआ है ना। इन हिज माइंड उसको ऐसा लगता है कि एक रुपए की वैल्यू एक यूटिल के बराबर है, ठीक है। तो सपोज करिए उसने जो जितनी भी उसने 20 यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम की है, तो 20 यूनिट से वो ऐसा मानता है कि उसको 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन हुआ है, 20 यूटिल का, है ना। और उसी तरह
ये समझा, ये माना कि अगर उसने 10 चॉकलेट खाया है तो उसको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो चॉकलेट से, वो आइसक्रीम से कम मिल रहा है। तो हाइपोथेटिकली ही हैज अज्यूम्ड कि इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव फ्रॉम आइसक्रीम, है ना। और उसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि एक यूटिल को उसने 1 रुपए से कंपेयर करके रखा था, है ना। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। मनी के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है ना, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, एक यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कितनी है ना। वो तो यूटिल्स में सपोज करिए आपको दी हुई है ना। मार्जिनल यूटिलिटी दैट यू डिराइव फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी गिवन इन यूटिल्स इज कंपेयर्ड विथ, इज डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। 1 रुपए के मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, that is expressed as MUM. Okay, marginal utility of 1 rupee is the extra utility obtained when an additional rupee is spent on the other goods. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा रुपी आप जब स्पेंड कर रहे हो, है ना, ऑन ईच एडिशनल रुपी स्पेंड हाउ मच यूटिलिटी इज डिराइव्ड। ठीक है, कितनी यूटिलिटी, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलने वाली है विथ ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी दैट यू आर स्पेंडिंग। मनी की यूनिट क्या है, रुपी। तो रुपी के टर्म्स में, है ना, हर एक रुपए को जो आप खर्च कर रहे हो तो उससे आपको एक्स्ट्रा कितनी यूटिलिटी मिल रही है ना, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, है ना। तो जब आप कंपेयर करोगे मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स ऑफ अ कमोडिटी with marginal utility of 1 rupee, you will get marginal utility of the commodity in terms of money. Okay, जब एग्जाम्पल करेंगे हम लोग प्रैक्टिकली तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक्चुअल में क्या करें, वंस अगेन लेट मी रिपीट, आप क्या कर रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, है ना, ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल वर्ड ही मतलब ईच यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, है ना, ये तो हमें पता ही है कि यूटिल्स में होता है, और उसको आप कंपेयर करो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, है ना। 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो ये होती है कि हर एक एक्स्ट्रा रुपी जो आप स्पेंड कर रहे हो उससे कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। So you will get what? You will get marginal utility of a commodity in terms of rupee, जो कि यूटिल्स में आपके पास था, अब वो रुपी के टर्म्स में आ गया है। ठीक है, let's do an example to clear our concept. Okay, so now please look at the board. A consumer consuming a single commodity, say X. ठीक है, कोई एक commodity का नाम हम लोग ने X रखा है। ठीक है, will be at equilibrium when, हम लोगों ने ये बार बार रिपीट किया है कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात आती है तो प्राइस को मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वेट करना है। जिस पॉइंट पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, है ना, प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विल बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो लेट्स सी, तो कमोडिटी सपोज एक्स है, तो एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, मार्जिनल MU इज मार्जिनल यूटिलिटी, so marginal utility of x is equal to price of x. This is what we need to achieve to be at equilibrium. एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करने के लिए ये होना जरूरी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। नाउ क्यों ऐसा जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सपोज करिए कि मार्जिनल यूटिलिटी जो उस यूनिट से आपको मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द प्राइस दैट यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट, तो आप जो प्राइस पे करने वाले हो मार्जिनल यूटिलिटी इतनी ज्यादा है,
है ना, बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है आपको, आपको लगता है कि आप प्राइस जो पे कर रहे हो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बेनिफिट इतनी ज्यादा है, तो क्या आप वहां पे रुक जाओगे, कंज्यूम और नहीं करोगे? ऑब्वियसली यू विल गो ऑन कंज्यूमिंग। क्यों? क्योंकि आप जो प्राइस पे कर रहे हो उसके हिसाब से बेनिफिट आपको इतना ज्यादा मिलता जा रहा है। तो जब तक बेनिफिट प्राइस से ज्यादा होगा, आपको लगेगा, जब तक प्राइस आप कम, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ ये तो प्राइस मैं कम ही दे रहा हूँ, उसके हिसाब से बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो जब तक आपको अंदर से ये लगेगा कि यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम द प्राइस, ओके, फ्रॉम द गिवन प्राइस, देन यू विल नॉट स्टॉप एट दैट पॉइंट, यू विल गो ऑन कंज्यूमिंग। ठीक है, जब तक कि आपको लगेगा कि आपका प्राइस से बेनिफिट ज्यादा है ना, आप तब तक कंज्यूम करोगे जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगने लगेगा कि अब इस लिमिट के बाद प्राइस पे करना वाइज नहीं है, अब जो बेनिफिट अचीव कर रहे हैं वो प्राइस के बराबर ही है ना। जब आपको लगेगा कि बेनिफिट और प्राइस बराबर हो गए, उस पॉइंट पे जाके आप रुक जाओगे। जब तक कि आपको लगेगा कि बेनिफिट प्राइस से ज्यादा है, आप कंज्यूम और करोगे, है ना, यू विल बी विलिंग टू स्पेंड, आप तब तक खर्च करने के लिए रेडी रहोगे जब तक कि आपको लगेगा खर्च करने से बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है, खर्च के कंपैरिजन में बेनिफिट ज्यादा है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर, तो यहाँ पे आपको समझ में आया पहली सिचुएशन में कि मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के बराबर होने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा होगी, आप यू विल बी विलिंग टू स्पेंड मोर, आपको लगेगा कि और खर्च कर सकते हैं क्योंकि अभी तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है ना। तो आप तब तक नहीं रुकोगे खर्च करने से जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर ना हो जाए। उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको प्राइस से लग रहा है कि कम है ना, आपको लगता है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के कंपैरिजन में कम है किसी यूनिट की, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन को रोक दोगे। क्यों रोक दोगे? तब तक आप नहीं खर्च करोगे जब तक कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के बराबर नहीं आ जाती, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के बराबर अगर आप नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि इट इज नॉट वाइज टू स्पेंड एनी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रूपी, है ना, एनी रूपी ऑन द प्रोडक्ट, बिकॉज आपको मार्जिनल यूटिलिटी उतनी मिल ही नहीं रही है। तो बेनिफिट अगर ज्यादा मिलता रहता है तो कंज्यूमर ज्यादा खर्च करने के लिए विलिंग रहता है ना, तो वो तब तक खर्च करता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर ना हो जाए। उसी तरह से बेनिफिट अगर प्राइस से कम लगता है तो अपने कंजम्पशन को कम कर देता है, तब तक कम करता रहता है जब तक कि उसके मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर ना हो जाए। Am I clear? So let's take a numerical example on this and learn the concept. Okay, students, let's see this example. Consumer wants to buy a good, say X, ठीक है, कोई एक commodity है उसका नाम X है, which is priced at ₹10 per unit. हर एक यूनिट का दाम, X की हर यूनिट का दाम 10 रुपए है, मतलब ये दाम जो है, ये प्राइस जो है चेंज नहीं हो रही, प्राइस कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है। सपोज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ X, ओके, यूटिल्स के टर्म्स में एंड इन रूपी टर्म्स, है ना, दोनों में हम लोग को निकालना है। तो यूनिट ऑफ X, एक यूनिट ऑफ X से आपको एक यूटिल अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो इट इज इक्वल टू ₹1, ऐसा अज्यूम किया गया, ऐसा माना गया है, ठीक है। ये अज्यूम किया गया है कि ₹1 से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक यूटिल का, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना निकाला गया है, ₹1, ₹1 से एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ये याद रखनी होगी कि जब भी आप इक्विलिब्रियम विथ यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे, है ना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एज पर यूटिलिटी एनालिसिस जब भी आप करोगे, तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा वर्क कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है ना, इम्प्लाइड मतलब ये माना हुआ है कि वो हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा एक्टिव है ना। तो जब भी आप एक इंडिविजुअल कमोडिटी का बार बार कंटिन्यूअस कंजम्पशन करोगे 1 by 1 यूनिट, है ना, तो आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से आपका जो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच कंजम्पशन, ईच यूनिट है सक्सेसिव यूनिट, वो कम होता जाएगा। ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये सब चीजें बात कर रहे हैं। तो जो भी एजम्पशंस लिया गया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, वो सारे एजम्पशंस यहाँ भी अप्लाइड है, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जब भी हम लोग ये सिंगल कमोडिटी या 2 कमोडिटी या मल्टीपल कमोडिटी जितना भी आप करोगे, उसमें
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी चल रहा है, ठीक है, वो भी वर्क कर रहा है. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक कमोडिटी है एक्स, ठीक है, और ये माना जा रहा है कि एक्स से जो यूटिलिटी डिराइव की जा एक्स का प्राइस जो है पर यूनिट 10 है, ठीक है. आप जितने भी यूनिट खरीदते जाओगे हर यूनिट के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा. सपोज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ एक्स, ऐसा माना गया है. ये आपको हमेशा अज्यूम करना होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है ना. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपी, है ना, 1 रुपी. 1 रुपए से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये अज्यूम किया गया है कि 1 रुपए से 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो गया, ₹1. नाउ सपोज करिए कि एक कंज्यूमर है जो कि 1 2 3 4 5 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक के बाद एक उसी कमोडिटी का, एक्स का, यूनिट्स ऑफ एक्स, मतलब एक कमोडिटी है एक्स, उसी की वो एक के बाद एक 6 यूनिट कंज्यूम कर चुका है ना, एक साथ में नहीं, एक के बाद एक, और मतलब कंटिन्यूएशन में, ये नहीं कि टाइम पीरियड बीतने के बाद, है ना, एक दिन एक खाया दूसरे दिन दूसरा खाया, तब नहीं होगा. ये एक ही साथ में एक के बाद एक करते हुए उसने 6 यूनिट कंज्यूम की है. कौन से प्रोडक्ट की, एक्स की, ठीक है. प्राइस कांस्टेंट है, आपको पता ही है, 10 रुपए पर यूनिट. तो हर यूनिट जो आपने कंज्यूम की उसके लिए 10-10 रुपए आप दिए. मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, है ना, ये आप अज्यूम किए हो कि सपोज करें कि आपको 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन इससे मिल रहा है, 16 यूटिल्स का इससे मिल रहा है, 10 यूटिल का इससे मिल रहा है, 4 यूटिल का. आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में याद होगा कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग देखते हैं तो उसका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है कि वो फॉलिंग है. ईच सक्सेसिव यूनिट का देखिए मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता जा रहा है ना, और एक पॉइंट आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, है ना. उसके बाद अगर फिर भी कंजम्पशन जारी रहा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है. ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था फर्स्ट सेशन में, है ना. क्या था मार्जिनल यूटिलिटी का, क्या तरीका है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जाती है, होते 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 एक पॉइंट आता है जब आप कंज्यूम करते ही जाओगे तो वो 0 भी हो जाएगी, है ना, मतलब कि नो यूटिलिटी. वो पॉइंट क्या होता है, नो यूटिलिटी का पॉइंट होता है, नो एक्स्ट्रा यूटिलिटी. और उसके भी बाद भी अगर कंज्यूम करोगे तो डिस यूटिलिटी, मतलब नेगेटिव यूटिलिटी होगी, ठीक है. तो वही हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो एक्टिव, इट इज ऑल्सो वर्किंग. तो जैसे जैसे ये कंज्यूमर एक के बाद एक 6 यूनिट खाता गया, उसको देखिए पहली यूनिट से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला 20 का, है ना, 20 यूटिल्स है ये. उसके बाद 16 यूटिल्स का मिला, उसके बाद 10 यूटिल्स का मिला, फिर 4 यूटिल्स हो गया, और कम होते होते एक पॉइंट पे यानी 5th यूनिट में आके वो 0 हो गया, ठीक है. और उसके बाद भी वो लेकिन कंज्यूम करे जा रहा है तो उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी -60, ठीक है. ये सब एक हाइपोथेटिकल फिगर है, अपने मन से सोचा हुआ. ये और पूछो मैम कहाँ से आ गया, मैम ने ये सोच के अपने मन से दिया है कि हाँ मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जा रही है ना. तो फॉल होते होते एक पॉइंट पे 0 हुई, उसके बाद नेगेटिव हो गई. दिस इज अज्यूम्ड, है ना, ये कैलकुलेशन नहीं है. अब आया कैलकुलेशन का पार्ट. हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करते हैं, है ना. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो ₹1 है ना, और मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स हम लोग ने यहाँ पे देखा जो मैंने लिखा है. तो जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी निकालना चाहोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करोगे, है ना. आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन यूटिल्स जो है इसको मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑफ मनी से डिवाइड करोगे, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इन रूपी टर्म्स, ओके. क्योंकि यूटिल्स में आपको मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है ना, इसका कमोडिटी का, और आपको मनी का मार्जिनल यूटिलिटी भी पता है. तो अब कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी मनी के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 20 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं. हर जो मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में दी गई है उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करते जा रहे हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है ₹1, ठीक है, और ये अज्यूम्ड है,
ये अज्यूम्ड है, इससे ये इक्वेशन निकला है। ओके, तो आपका क्या आया, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी देखिए क्या आ रहा है, क्योंकि आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम फिगर रिपीट हो रहा है ना, 20, 16, 10, 4, 0 एंड -6। नाउ अब हम लोग करना क्या है, प्राइस से कंपेयर करना है ना। आपको पता है ना कि जब भी हम लोग को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी इक्वेटेड विद प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, है ना। तो प्राइस आपको 10 दिया हुआ है ना, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 20, 16, 10, 4, 0 एंड -6। तो जब आप देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का, 10, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, है ना। तो आपको क्या लग रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस। यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट जब उसने कंज्यूम की तो भी मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस। प्राइस 10 रुपए है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी इसमें 20 मिल रहा है पहली यूनिट में, दूसरे यूनिट में 16 मिल रही, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दो यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद क्या कंज्यूमर रुक जाएगा, नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको जो बेनिफिट मिल रहा है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस जितना वो पे करे उससे ज्यादा मिल रहा है ना। वो इतना पैसा ही नहीं दे रहा जितना उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो जब बेनिफिट ज्यादा लग रहा है उसको तो वो कंजम्पशन रोकेगा नहीं, है ना, वो और कंज्यूम करेगा। ही विल गो ऑन कंज्यूमिंग, ही विल कंज्यूम अनदर यूनिट, थर्ड यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है तो आप देखिए कि इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 10 है और प्राइस पेड भी 10 है। दैट मीन्स उसको यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वेट हो गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड यूनिट पे उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, क्योंकि जितना वो प्राइस दे रहा है उतना ही उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। तो इससे बियॉन्ड अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही, क्यों रुकेगा, है ना। वो उस पॉइंट पे रुकेगा जहां यूटिलिटी और प्राइस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर वो इसके बाद भी कंज्यूम करेगा तो देखते क्या होता है। फोर्थ यूनिट अगर वो कंज्यूम कर रहा है, आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूटिल्स है ना, 4 यूटिल्स है इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन प्राइस वो 10 रुपए दे रहा है। दैट मीन्स -6 रुपीज, -6 का डिफरेंस है ना। -6 का माइनस मतलब क्या है, नेगेटिव साइन है, उसको लॉस हो रहा है, उसको प्राइस वो ज्यादा दे रहा है, यूटिलिटी कम मिल रही है ना। यूटिलिटी 4 की है, प्राइस 10 है, तो लॉस कितने का हो रहा है उसको अंदर में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब प्राइस ज्यादा दे रहा है उसका सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो उसको ही विल नॉट बी हैप्पी विद द बार्गेन, ही विल नॉट बी हैप्पी टू स्पेंड 10 रुपीज नाउ, क्योंकि उसको उतना बेनिफिट अब नहीं मिल रहा है ना। उसको सिर्फ 4 यूनिट का बेनिफिट मिल रहा है, जबकि 4 यूनिट मतलब यहाँ पे यूटिल्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, इन टर्म्स ऑफ रुपी ओनली। तो हम लोग अब ये रुपी को ही बात कर रहे हैं, है ना, रुपी एंड रुपी। तो 4 रुपए का उसको बेनिफिट हो रहा है, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल उसको 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद भी कंज्यूम करेगा तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे तो इसको कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा था, है ना, लेकिन फिर भी पैसा दे रहे हैं 10 रुपया, तो क्या होगा, ये तो बेवकूफी है, पूरा 10 रुपए नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी अगर स्पेंड करेगा तो पहले से ही 6 रुपए का नुकसान ही था, उसको कोई फायदा तो था ही नहीं, और उसके बाद 10 रुपए और उसने पे कर दिया तो 16 रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या वो कोई पागल तो नहीं है ना कि वो जबरदस्ती पैसा देगा जब कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रही, है ना। आप कभी भी ऐसी जगह में खर्च नहीं करोगे जहाँ कोई बेनिफिट ही नहीं है, आप हमेशा वहां खर्च करोगे जहां आपको बेनिफिट ज्यादा मिले, है ना। और एटलीस्ट उस पॉइंट पे आप आके रुकोगे जहां पे आपको लगेगा कि अब बेनिफिट और प्राइस पेड बराबर हो गया, जस्टिफाइड है ना, उससे नीचे आप जाओगे नहीं। तो आप इस पॉइंट पे आके यानी कि थर्ड यूनिट तक, फर्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करोगे, जस्टिफाइड है क्योंकि आपको बेनिफिट ज्यादा है प्राइस से, सेकेंड यूनिट भी कंज्यूम करोगे क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है प्राइस से, है ना, और यहाँ पे आप रुक नहीं रहे हो क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है। आप थर्ड यूनिट पे आ गए, थर्ड यूनिट पे बेनिफिट और प्राइस बराबर हो गया, यहीं पे आपको रुकना है। यहीं पे एक रैशनल कंज्यूमर जो है रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो गया। इस पोजीशन से वो नीचे या ऊपर नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। अगर नीचे जाएगा तो नुकसान है, ऊपर जाएगा तो बेनिफिट ज्यादा है तो वो रुकेगा क्यों, है ना। तो वो वहां पे रुकेगा जहाँ पे रेस्ट है, जहाँ पे एक बैलेंस्ड पोजीशन है, जहाँ पे प्राइस और यूटिलिटी बराबर हो गया, ठीक है। तो वी विल लर्न द ग्राफ नाउ कि किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी का
इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करते हैं? आपने ग्राफ तो देखा ही है, मार्जिनल यूटिलिटी का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है ना, और उसके बाद अगर एक्स एक्सिस पे वो रीच करता है तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और उसके भी नीचे गया तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करते हैं उसको कैसे ग्राफ में दिखाते हैं वो हम लोग अभी करते हैं।